السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی مسائل کی اس نشست میں ایک مرتبہ پھر تمام حاضرین و ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ چند سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں، غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایتیں بخشے۔ پہلا سوال محمد تنویر اشرف صاحب کا ہے جو اعظم گڑھ سے بھیجا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام مومن یا مومنہ کی پکی قبر بنانا کیسا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر جائز ہے تو پھر اس طرح تو قبرستان میں بہت جلد گنجائش ختم ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ تنویر صاحب، عام مومن اور مومنہ کی پکی قبر بنانے سے آپ کا مطلب اگر یہ ہے کہ اس کی قبر پر مزار یا کوئی گنبد وغیرہ یا حجرہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام، علماء اعظام، صلحاء امت کے مزار کو بنایا جاتا ہے اور اس پر گنبد بنایا جاتا ہے، اگر یہ مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے سادات کرام، علماء و صلحاء امت کے مخصوص افراد کے لیے اس طرح کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی زمین میں، یعنی جو زمین قبرستان کے نام پر عام مومنین کے لیے وقف نہ کی گئی ہو، اس میں اس طرح کے مزارات بنائے جا سکتے ہیں اور گنبد بنائے جا سکتے ہیں، تعمیرات کی جا سکتی ہیں۔ عام مومنین و مومنات کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، لہذا عام مومن و مومنہ کا مزار یا اس پر کسی طرح کا کوئی گنبد یا وہاں روضہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ کی مراد جو زمین پر کوہان نما قبر بنائی جاتی ہے کچی مٹی سے، وہاں کچی مٹی کے بجائے پکی اینٹ لگا دی جائے یا اس کے چاروں طرف سے پکی اینٹ لگا دی جائے، اگر یہ مراد ہے تو یقیناً قبر کے اوپر پکی اینٹ لگا سکتے ہیں اور اس کو پکا کر سکتے ہیں، اس خوف سے کہ بہت جلد بیٹھ نہ جائے یا کوئی درندہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے لیے اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ زمین کسی قبرستان کے لیے وقف ہے تو اس میں کسی کے مزار یا کسی کا گنبد یا کسی کی پکی قبر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ قبرستان وقفی ہو اور وہ وقف کر دیا گیا ہو، قبرستان ہی کے نام پر وہ زمین ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں ہے یا خود اس کی اپنی ملکیت میں ہے اور وہ جس کی ملکیت میں ہے وہ اجازت دے رہا ہے، تو پھر اولیاء و علماء کرام، شہداء اعظام کے مزارات تعمیر کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے، دوسروں کے مزارات نہیں بنائے جا سکتے۔ امید ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور سوال ممبئی سے آیا ہے، محترم جناب سمر الدین صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ الحمدللہ سوالات کے جوابات سنتے بھی رہتے ہیں اور سوالات کرتے بھی رہتے ہیں، علم دین سے لگاؤ ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے ایک درود پاک پڑھا ہے، اس کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طرح سے میں نے پڑھا ہے، ان دونوں میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، ایک تو یہ پڑھا ہے اور ایک یہ پڑھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ کے بعد ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں رسالت کے فوراً بعد کہہ دیں، خواہ ما ہوا اہلہ کے بعد کہہ دیں، اس سے درود پاک پر کوئی فرق نہیں پڑتا، درود پاک وہی رہے گا۔ ہم نے اگر اس میں رسالت یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کہہ دیا
تب بھی وہی درود پاک ہے، اور اگر ما ہوا اہلہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ نے لکھا دیکھا ہے تب بھی وہی درود پاک ہے۔ درود پاک کے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد آ جانے یا درود پاک ختم ہونے کے بعد آنے سے درود پاک پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس درود پاک کی فضیلت میں یہ روایت آئی ہے جس کو القول البدیع میں امام سخاوی نے روایت کیا ہے اور بھی بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن چونکہ مختلف طرق کے ساتھ مروی ہے اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ حسن کے درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ جس نے یہ درود پاک پڑھا اس نے 70 فرشتوں کو 1000 دن تک اس کا ثواب لکھنے سے تھکا دیا۔ یعنی جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے احسانات کرنے والوں کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جزائے خیر کی دعا کرنا جائز ہی ہے، اچھی بات ہے۔ دوسری روایات میں بھی اس طرح کا ذکر آیا ہے اور اس میں بھی جزائے خیر کی دعا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کی گئی ہے۔ تو اس فضیلت کے تحت اگر کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے یا اس کا ورد کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس درود پاک کو بالکل پڑھا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے کہہ لیں یا درمیان میں کہہ لیں، اس میں رسالت کے فوراً بعد دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احمد رضا صاحب گجرات سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی انکم سے عیدگاہ بنوائی جا سکتی ہے یا نہیں بنوائی جا سکتی، یا کسی اور کام میں جو فی سبیل اللہ ہو اس کو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا۔ مسجد کی انکم زائد ہے اور بچی ہوئی ہے، اس انکم سے عیدگاہ بنوانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسجد کی جو آمد ہے اس کا مطلب یہ کہ مسجد کے نام پر جو وقف شدہ زمینیں ہیں یا دکانیں ہیں یا جو بھی ذریعہ ہو اس ذریعے سے جو آمد ہوتی ہے مسجد کی، وہ آمد اتنی زائد ہے کہ مسجد کے تمام تر اخراجات پورا کرنے کے بعد بھی وہ آمد بچ جاتی ہے، اور ابھی فی الحال مسجد اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہو اس آمد کی، اس پیسے کی، وہ بچا ہوا ہے، زائد از ضرورت ہے، نہ ہی مستقبل قریب میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس زائد پیسے کو، اس بچے ہوئے پیسے کو کہیں عیدگاہ کی تعمیر میں لگانا یا کہیں فی سبیل اللہ خرچ کر دینا یہ جائز ہے۔ البتہ مسجد کا متولی محلے کے افراد سے، اہل محلہ سے اجازت لے کر عیدگاہ بنانے والے کے سپرد کر دے اس پیسے کو جس سے وہ عیدگاہ تعمیر کرانا چاہتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ خود عیدگاہ بنانے لگ جائے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ وہ ان کا خرچ کر سکتا ہے اہل محلہ کی اجازت کے بعد، مثلا فقراء کے حوالے کر دے، اہل محلہ سے اجازت لے لے اور واقعتاً کچھ فقیر لوگ اس کے مستحق ہوں تو ان کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کو فی الحال بھی اس کی ضرورت نہ ہو اور مستقبل قریب میں بھی اس کی ضرورت پڑنے کی امید نہ ہو، ظن غالب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کو ضرورت ہے اور مسجد کی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر کسی دوسرے کے حوالے وہ رقم کر دی جائے۔ احتیاط کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے گنجائشیں دی ہیں، لیکن ان گنجائشوں کو ان مقامات پر ہی استعمال کیا جائے، ان مقامات پر ہی رکھا جائے جن مقامات کے لیے گنجائشیں دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیں۔ ایک سوال اور بھیجا ہے جناب سمر الدین صاحب نے، وہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ٹوپی لگانا کیسا ہے، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو احرام کے وقت تو ہم ٹوپی نہیں لگاتے، اس وقت ہم صرف احرام باندھتے ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی ہے، وہاں ہماری نماز ہو جاتی ہے،
यहाँ अगर इत्तिफाकन हमारे पास टोपी नहीं है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? जवाब इसका यह है कि टोपी लगाना मुसलमानों की एक नुमाया निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात से टोपी लगाना साबित है, वो लोग टोपी लगाते थे। ये अलग बात है कि कभी सिर्फ टोपी, कभी टोपी के साथ इमामा भी बांधते थे, लेकिन टोपी लगाना बहरहाल साबित है। अगली वजह है कि फुक़हा ने नमाज के आदाब में से एक अदब ये लिखा है कि टोपी लगा ली जाए। यहीं से ये बात वाज़े हो गई कि टोपी लगाना नमाज के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर टोपी नहीं लगाई तो आपकी नमाज नहीं होगी, या अगर टोपी नहीं है आपके पास तो इस वजह से आप नमाज ना पढ़ें। जब टोपी लगाना नमाज के आदाब में से एक अदब है तो फिर बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर आपके पास टोपी नहीं है तो आप बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बगैर टोपी के नमाज पढ़ने की आदत डाल ले, या वो सिर्फ इस नियत से कि मैं इतना बड़ा हो गया अब मुझे टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं रही, तो ये गुनाह बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच जाएगा और फिर ये जुर्म बड़ा जुर्म हो जाएगा। आमतौर से अगर टोपी नहीं है और टोपी ना होने की वजह से कोई पढ़ ले रहा है नमाज नंगे सर तो उसकी नमाज हो जाएगी, जैसा कि कुतुब फिक़्ह में लिखा है। लेकिन इसका आदी नहीं बनना चाहिए। जब आपको नमाज पढ़ना है और आप नमाजी हैं तो अपने साथ टोपी रखने का एहतिमाम कीजिए, बल्कि अपने सर पर टोपी रखने का एहतिमाम किया कीजिए, इसलिए कि टोपी सिर्फ नमाज ही में सुन्नत नहीं बल्कि आम हालात में भी, नमाज से बाहर भी सर पर टोपी लगाना चाहिए। ये मोमिनों की बहुत खास पहचान है, इस पहचान को हरगिज ना छोड़ें। नमाज अगर कभी जरूरत पड़े तो बगैर टोपी के भी पढ़ सकते हैं, नमाज बहरहाल हो जाएगी। दूसरा जुज आपके सवाल का यह है कि जब हम हज करने जाते हैं, एहराम बांधे हुए होते हैं, वहां हम नमाज भी पढ़ते हैं, तवाफ भी करते हैं, ज़ियारत भी करते हैं, लेकिन वहां सर पर टोपी नहीं होती, तो वहां तो नमाज हो जाती है। अगर उसी तरह से हम यहां भी नमाज पढ़ें, इसका जवाब यह है कि उन हालात पर यानी एहराम पर हम दूसरी हालतों का क़ियास नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि एहराम के लिए कुछ ख़ास अहकाम हैं, उन अहकाम को हम आम जिंदगी में नाफिज नहीं कर सकते बगैर दलील शरई के। अगर कोई दलील शरई हो तो अलग बात है, और अगर कोई दलील शरई नहीं है तो उन अहकाम को हम उन हज से हटकर यानी हालत एहराम से हटकर दूसरी हालतों में नाफिज नहीं किया जा सकता, और दूसरी हालतों को उस हालत पर क़ियास नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि आम हालात में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात से भी कभी कभी बगैर टोपी के रहना या बगैर टोपी के होना मनकूलो मरवी है और साबित है, लेकिन इसका आदी नहीं बनना चाहिए, चूंकि ये हमारी निशानी है और बड़ी महबूब अलामत है। अपने पास टोपी हमेशा रखें। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नसीब फरमाए। एक साहिब ने सवाल भेजा है बड़ी तफसील से, इतनी तफसील है कि सवाल को समझना ही मुश्किल है कि वो पूछना क्या चाहते हैं। गालिबन उनका मंशा ये है कि कुरान पाक, हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सब एक हैं, तो फिर ये फ़िरक़े कैसे बन गए? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 73 फ़िरक़ों वाली जो बात कही है वो हमें हुक्म दिया है 73 फ़िरक़ों में बंटने का, या उन्होंने कोई पेशीन गोई की है, उन्होंने कोई खबर दी है? तीसरा सवाल, उनके उस पूरे लंबे मजमून से मैंने ये समझा है कि वो ये पूछना चाहते हैं कि जो हम हनफी, शाफिई, मालिकी, हम्बली चारों फ़िक़हें अलग अलग हैं, जब चारों बरहक हैं तो फिर इनको 4 जगह बांटने की क्या ज़रूरत है? एक ही फ़िक़्ह सब रखी जाए और इस पर अमल किया जाए। आप अपने तमाम सवालात के जवाबात तफसील से सुनिए। पहला सवाल आपका यह है कि 73 फ़िरक़ों में बंटने वाली जो बात है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है या पेशीन गोई है? इसका जवाब यह है कि 73 फ़िरक़ों में बंटने का हमको हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हमको तो मना किया गया कि फ़िरक़ों में मत बंटो।
इख्तिलाफात मत करो, आपस में तफरीका मत डालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अहवाल से अपने सहाबा को बाखबर किया कि अनकरीब मेरी ये उम्मत, जिसको मुसलमान कहा जाता है, जिसको अहले इस्लाम, अहले ईमान, कलिमा गो कहा जाता है, ये उम्मत जिसने मेरी दावत को कबूल किया है, ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। तो ये पेशीन गोई है, कोई हुक्म नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये पेशीन गोई हो गई तो अब हमारे लिए बटना जरूरी है, बल्कि हमें तो ना बटने का हुक्म दिया गया है। पेशीन गोई का मतलब ये कि हम बट जाएंगे, ये मतलब नहीं है कि हम बट जाएं, हम ऐसा कर लें। सबसे पहले तो जहन में ये बिठाइए कि ये हुक्म नहीं है, बल्कि ये हमारे हालात की, हमारे तफरीकों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही से अपने सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात को खबर दी कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। दूसरी बात आप जो ये पूछना चाहते हैं कि जब सब कुछ एक है तो फिर मुसलमान एक क्यों नहीं होते, अलग अलग फिरकों में क्यों बटे हुए हैं? इसका जवाब यह है कि आपने अभी फिरके का मतलब नहीं समझा है। जैसा कि आपकी बातें इस तरह की हैं कि फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली ये अलग अलग क्यों हैं? ये अलग अलग फ़िरके नहीं हैं, इसको आप समझ लें। फ़िरका अलग चीज़ है, अलग अलग नज़रियात किसी फ़र्ई मसअले में, किसी अमल में जिसके बारे में सराहतन हुक्म साबित न हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उस बारे में इख्तिलाफ करना ये एक अलग चीज़ है। और वो जो फ़िरक़ों की बात आपने समझी है वो एक अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो फ़िरका बंदी जिससे मुमानात की गई है, जिससे रोका गया है, वो एक अलग चीज़ है। और फ़िक़हों का अलग अलग होना ये एक अलग चीज़ है। फ़िरका बंदी वो है जिसमें हमारे अकायद ही अलग हो जाएं, जिसमें हमारे अकायद ही ख़राब हो जाएं और जिसमें हम अपने अकायद को लेकर अलग हो जाएं सवाद आज़म से, बड़ी जमात से, और अपना एक अलग ग्रुप बना लें। उसमें अकायद ही अलग हो जाया करते हैं। और फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह हम्बली में अकायद अलग नहीं हैं, बल्कि ये फ़िक़्हें अलग अलग हैं। अब रह गई आपके जहन की ये बात कि ये आखिर इख्तिलाफ हुआ क्यों? तो इख्तिलाफ होने की बहुत सी वजहें होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि जिस मसअले में, जिस हुक्म के बारे में इख्तिलाफ हुआ, वो हुक्म किताब व सुन्नत में सहाबा के दौर में वो हुक्म मिला ही नहीं कि ऐसा कभी कोई मसला पेश आया हो और ये हुक्म लगाया गया हो, इसलिए हुक्म अलग अलग हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कोई एक मिसाल उसकी सहाबा के दौर में मिली तो वो हुक्म सहाबाए किराम के दौर में या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मिला तो, लेकिन जिन अल्फाज के साथ हुक्म मिला उन अल्फाज के कई मानी हैं। अब उनमें से एक माना इन्होंने समझा, दूसरा माना इन्होंने समझा, इसलिए ये बातें अलग अलग हो गई। हकीकत यह है कि ये सब के सब इस्लाम और शरीयत मुहम्मदिया के तर्जमान हैं। आप इनमें से किसी की भी तकलीद कर सकते हैं और हर मुक़ल्लिद, वो हनफी हो, शाफ़िई हो, ख्वा मालिकी हो, हम्बली हो, वो अपने आप को हक पर समझता है और उसे समझना भी चाहिए, इसलिए कि उसके इमाम ने जो इज्तिहाद किया है उस इज्तिहाद से जो साबित हुआ वो वही है। तो इसको आप फ़िरका बंदी मत समझिए, ये फ़िरका बंदी नहीं है, इसलिए कि इन चारों के अकायद वही हैं, इन चारों के आमाल में, इन चारों के नज़रियात और फ़िक्रों में थोड़ा इख्तिलाफ है। इसको आप फ़िरका बंदी से नहीं ताबीर कर सकते। हर घर में इख्तिलाफ होता है, भाई भाई से इख्तिलाफ होता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये भाई आपस में फ़िरके बन गए और एक घर में 3 फ़िरके या 4 फ़िरके हो गए। यानी इख्तिलाफ को और इफ्तिराक को समझिए। दूसरा सवाल इसी साइल का ये है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है। शेयर मार्केट की मुख्तलिफ नौइयतें और मुताद्दिद सूरतें होती हैं, उनमें से कोई एक सूरत मुतय्यन करके आप बताएं तो हुक्म बताया जाए कि इस सूरत में
पैसा लगाना कैसा है। वैसे इस ताल्लुक से इस मौजू पर मुस्तकिल तसनीफ़ात भी आ चुकी हैं मुफ्तियान किराम की, आप चाहें तो उनका भी मुताला कर सकते हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है और किस तरह से नहीं लगाया जा सकता, आप मुताला कर सकते हैं। और अगर पूछना चाहें तो उस सूरत को मुतय्यन करके फिर दोबारा सवाल कर लें। एक सवाल है रमज़ान में इंतकाल करने के ताल्लुक़ से। साइल ने पूछा है कि रमज़ान में इंतकाल करने वाले की ये फजीलत कि उसकी मग़फ़िरत हो जाती है और उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज रखा जाता है, ये हदीस पाक कहाँ हैं और किस दर्जे की है। इस सिलसिले में कुछ तफसील है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमा ने ये हदीस नक़ल की है कि जिसका इंतकाल रमज़ान में हो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। दूसरा सवाल साइल का ये है कि ये हदीस किस दर्जे की है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन जिस तरह हश्र के दिन हिसाब व किताब बरहक है, मुतअद्दिद अहादीस में ये बात बताई गई है और ये बात साबित है कि हश्र के दिन हर एक से उसके आमाल का हिसाब होगा। लेकिन वहीं ये बात भी सही अहादीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग वो होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के जाएंगे। तो ये हरगिज़ न समझा जाए कि उस आम हुक्म के ये हदीस मुआरिज हो गई जिसमें कहा गया है कि सबका हिसाब किताब होगा, हर एक से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा। एक तरफ तो ये बात कही गई और दूसरी तरफ ये बात कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के, और एक रिवायत में आया बगैर किसी अजाब के वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो जब बगैर हिसाब और बगैर किसी अजाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इस हदीस का क्या मतलब रह गया, या इस बात का क्या मतलब रह गया कि हर एक से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा। ये एक आम हुक्म है। अब अगर किसी सही हदीस से इसकी तखसीस साबित हो जाती है तो इस तखसीस को बयान मान लिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि इस आम हुक्म से ये 70,000 लोग अलग हैं। इनको ये खुसूसियत हासिल है कि ये उन आम मोमिनीन से जिनका हिसाब व किताब होना है उनसे अलहदा हैं। इसी तरह ज़मान और मकान यानी मुख्तलिफ वक्तों की फजीलत की वजह से फितने कब्र और अजाब कब्र से महफूज होना ये बात साबित है। कुछ वक्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत दी है कि उनकी वजह से इंसान फितने कब्र से महफूज हो गया, उसका इंतकाल ऐसे वक्त में हुआ कि वो उसकी वजह से अजाब कब्र से महफूज हो गया। तो इस हदीस को उस हदीस के मुआरिज न समझा जाए जिसमें यह कहा गया है कि हर एक से अजाब कब्र, हर एक से कब्र में सवालात किए जाएंगे, पूछा जाएगा, और वहां अगर सवालात में कामयाबी मिल गई तो बंदा कामयाब समझा जाएगा और अगर कामयाबी नहीं मिली तो बंदा नाकाम समझा जाएगा। वो एक आम हुक्म है। अब इस तरह की जो हदीसें मिलेंगी उस आम हुक्म की मुखस्सिस होंगी और उनसे खास कर लिए जाएंगे ये अफराद जो इस तरह के होंगे। मसलन एक हदीस कई तुरुख से कई सनदों के साथ मुतअद्दिद किताबों में आई है, मामिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमुअती औ लैलतहा इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र। इस हदीस पाक को इमाम तिर्मिज़ी ने भी रिवायत किया है और इसको हसन या सही लिगैरिही के दर्जे में रखा है। यानी ये हदीस इतने तुरुख से मरवी है कि सही है। अब इस हदीस से उन अहकाम की या उन अहादीस की तखसीस हो गई जिन अहादीस में ये कहा गया है कि हर एक से कब्र में सवाल किया जाएगा, कब्र में पूछा जाएगा, हर एक से कब्र में सवालात होंगे। तो अब इससे ये तखसीस हो गई कि जो जुमे की शब में या जुमे के दिन जिसका इंतकाल होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको फितने कब्र से महफूज रखेगा। इस हदीस की सेहत के बाद जब ये साबित हो गया कि वो हुक्म जो आम था उसकी तखसीस की गई है, इस हदीस से उसकी तखसीस हो गई। अब अगर कोई दूसरी हदीस मिलती है जिसमें दूसरों की भी तखसीस की गई हो तो यकीनन वो लोग भी खास हो जाएंगे। यही वजह है कि अल्लामा शामी ने अपनी मशहूर किताब रद्दुल मोहतार
اور तहतावी अला मराकिल फलाह में भी ये बात नकल की गई कि जो लोग शब जुमा या जुमे के दिन इंतकाल करते हैं उनको फितने कब्र से महफूज रखा जाता है। इसी तरह जो लोग रमज़ान में इंतकाल करते हैं उनको भी फितने कब्र से महफूज रखा जाता है। अब रह गई ये बात कि फितने कब्र से सिर्फ उसी वक्त तक जब तक रमज़ान रहेगा या जब तक जुमा या शब जुमा रहेगी उसी वक्त तक महफूज रखा जाएगा या हमेशा महफूज रखा जाएगा। तो ज़्यादातर उलमाए किराम इस बात की तरफ गए हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वसी है, हम उस पर पाबंदी क्यों लगाएं। तो हम ये समझें कि हमेशा हमेश के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको फितने कब्र से महफूज रखेगा। यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है और इसी को अहले सुन्नत व जमात ने अपनाया है जो हमारे दरमियान मशहूर है। खुलासा ये कि जिस हदीस के बारे में आपने जानना चाहा वो हदीस हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने शरह सुदूर में नकल की है और वो हदीस अगरचे बज़ाते खुद दर्जे के एतबार से ज़ईफ़ है लेकिन ये हुक्म और दूसरी अहादीस में भी मज़कूर है और वहाँ ये बात कही गई है कि अल्लाह तबारक व तआला जो रमज़ान में इंतकाल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखता है फितने कब्र से और उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। अगरचे वो हदीसें भी ज़ईफ़ हैं लेकिन ये मुख्तलिफ तुरुक़ से मिलकर इस दर्जे को पहुँच जाती हैं कि उस आम हुक्म से तख़सीस साबित कर दें, इसलिए कि उस आम हुक्म से तख़सीस पहले ही साबित हो चुकी है कि शब जुमा और जुमे के दिन में इंतकाल करने वाले उस आम हुक्म से अलग हैं। तो इन अहादीस की बुनियाद पर, इन रिवायात की बुनियाद पर शहर रमज़ान में इंतकाल करने वाले भी उस आम हुक्म से अलग समझे जाएं। अल्लाह तबारक व तआला सही सीखने और सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए।